دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ المطففین اس کی آیت نمبر 22 سے 26 تک آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نیکیاں کرنے والے لوگ وہ نعمتوں والی جنتوں کے اندر ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں کے اوپر بیٹھے وہ ہر طرف کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں پہ نعمتوں کی رونق دیکھیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جو کہ مہر لگی ہوئی، سر بمہر ہوگی، بند ہوگی۔ ختامہ مسک، اس کے اوپر کستوری کی مہر لگی ہوگی، اس سے بند ہوگی۔ ختامہ مسک، اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اسے جب پی کے آخر پہ جائیں گے تو کستوری کی خوشبو یہاں سے ذائقہ آئے گا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ان نعمتوں کی طرف جو دوڑ لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ کوشش کر کے، محنت کر کے ان نعمتوں کو حصول کے لیے دوڑ لگا لیں۔ جیسے بندہ اپنے کاروبار کے لیے کمپٹیشن کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اس سے میری پروڈکٹ اچھی ہو جائے، میرا بزنس اچھا ہو جائے، ساری بندہ محنت کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کوئی فقر آ جائے گا، کوئی غربت آ جائے گی جس کی وجہ سے تم مر جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا اتنی زیادہ وافر ہو جائے گی، دنیا کے وسائل اتنے زیادہ تمہارے پاس آ جائیں گے، پھر تم ان وسائل کے حصول کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، جیسے پہلے لوگ اس دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے تھے، ایسے تم بھی بھاگ پڑو گے، اور پھر یہ تمہیں غافل کر دے گی، تمہیں ہلاک کر دے گی۔ جیسے پہلے لوگ دنیا کی دوڑ میں اللہ کی یاد کو بلا بیٹھے تو وہ ہلاک ہو گئے، ایسے ہی کہیں تمہارے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ تو بندہ جب دنیا میں نہیں آیا تھا تو اللہ نے رزق تو لکھ دیا تھا، رزق تو لکھا ہوا ہے کہ اتنا ملنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح موت بندے کے پیچھے پیچھے ہے، اسی طرح رزق بندے کے پیچھے پیچھے ہے کہ اس کو کہاں سے ملنا ہے۔ اس نے جتنی دیر تک اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لینا، اس کو موت نہیں آئے گی، اور پھر جتنا اسے ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے، تو پھر جائزہ طریقے کے ساتھ کیوں نہ کما لیا جائے، پھر ناجائز طریقے کو اپنائے جائیں۔ تو دنیا کی دوڑ سے نکل کر یہ دین کی دوڑ، یہ جنت کے حصول کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جو مہینہ، عربی کا مہینہ جو کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں نبی علیہ السلام بہت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو جیسے جیسے رمضان المبارک قریب آ رہا ہے تو اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف اور راغب کریں، عبادات کی طرف اپنا دل اور مائل کریں۔ اگر کوئی بندہ گانے وانے سنتا ہے تو چھوڑ دے، عبادت کی طرف آ جائے۔ اگر کوئی بندہ کوئی ناجائز کاروبار کر رہا ہے تو اس پہ نظر ثانی کرے، جائز ذرائع آمدن کی طرف آ جائے۔ اگر کوئی بندہ سود کا کام کرتا ہے، اسے چھوڑ کر رمضان میں داخل ہونا ہے تو پاکیزہ مالوں کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں۔ اگر کوئی بندہ کسی کا حق دبائے بیٹھا ہے تو پھر عبادات سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی کا 1000 روپیہ مارا ہے، تہجد پڑھنے سے وہ 1000 روپیہ وہ معاف نہیں ہوگا، وہ دینا پڑے گا۔ وہ جنہوں نے بڑی تہجدیں پڑھی ہوں گی، بڑے نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے ہوں گے،
तो क़यामत वाले दिन उनको बदला दे दिया जाएगा। ज़ालमा हाज़ा व अकला माला हाज़ा व सफ़का दमा हाज़ा, इससे जुल्म किया है, इसको गाली दी है, इसका खून बहाया है, इसके साथ फलां जाति की है। तो जिस जिस बंदे के साथ जो जाति की हुई है वो सारियों का बदला, इसकी नेकियां उधर चलती जाएंगी। तो नबी अलैहिस्सलाम का मामूल क्या था कि ये शाबान वाला महीना, सही मुस्लिम की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1156, नबी अलैहिस्सलाम के रोजे कैसे थे? तो आपने फरमाया काना यसूमु हत्ता नकूला कद सामा, रमजान के अलावा नबी अलैहिस्सलाम नफली रोजे कभी कभी इतने रखने शुरू कर देते कि हम समझते कि नबी अलैहिस्सलाम अब नफली रोजे भी रखते ही जाएंगे। वयुफ्तिरु हत्ता नकूला कद अफ्तरा, और फिर कभी कभी रमजान के अलावा बाकी दिनों में रोजे नहीं रखते थे, कितने कितने अय्याम ही गुजर जाते तो हम कहते हैं कि शायद अभी नफली रोजे नहीं रखेंगे। वलम अराहु साइमन मिन शहरिन कत्तु अक्सर मिन सियामिही मिन शाबान। उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं कि जितने रोजे नबी अलैहिस्सलाम शाबान में रखा करते थे, इतने रोजे नफली मैंने बाकी महीनों में नहीं देखे कि किसी बाकी महीनों में, साल के इसके अलावा महीनों में जो 10 महीने बनते हैं, एक महीना तो रमजान का है और शाबान में नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा नफली रोजे रखते। तो इससे बकिया महीनों के अंदर उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इतने रोजे नहीं रखते थे, शाबान में बड़े रोजे रखते थे। काना यसूम शाबान कुल्लहु, सारे का सारा शाबान ही लगता के रोजे रख लेते। काना यसूम शाबान इल्ला कलीला, शाबान में चांद के दिनों के रोजे छोड़ते ज्यादा रोजे रख लेते थे। तो हमें पता चला कि जैसे जैसे ये अल्लाह ताला का रहमतों वाला बरकतों वाला महीना, ये रमजान मुबारक करीब आ रहा है, ऐसे हमें नेकियों की तरफ राग़िब होना चाहिए। और जो बेहतरीन अमल नेकियों की तरफ ले जाने वाला, जो कि नबी अलैहिस्सलाम इस महीने में किया करते थे, वो नफली रोजे हैं। पीर और जुमेरात का रोजा भी रखें, अय्याम बीस का रोजे भी रखें। इसके अलावा जितनी अल्लाह ताला तौफीक दे उतने ही शाबान में रोजे रखते जाएं। और अगर शुरू शाबान में रोजे नहीं रखे, दरमियान में नहीं रखे, तो हदीस में मना है कि आखिरी 1-2 रोजे नहीं रखने चाहिए कि रमजान की आमद से पहले बंदा 1-2 दिन पहले ही रोजे शुरू कर ले। वो 1-2 दिन पहले रोजे रखने से मना किया गया है। अलबत्ता शुरू शाबान से, जैसे कि अभी शाबान की इब्तिदा है, इसमें जितने रोजे आप ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं वो रखने चाहिए। सुनन नसाई की हदीस है, हसन दर्जे की रिवायत है, हदीस नंबर 2357। हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लम अराका तसूमु शहरन मिन अश-शुहूरि मा तसूमु मिन शाबान। हुजूर आप शाबान में जितने रोजे रखते हैं, मैंने इसके अलावा बाकी महीनों में आपको इतने रोजे रखते नहीं देखा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ालिका शहरुन यग़फ़ुलु नासु अन्हु बैना रजबिन व रमज़ान, ये एक ऐसा महीना है जिसमें लोग गाफिल रहते हैं। वो रजब और रमजान के दरमियान वाला जो महीना है उसमें लोग गाफिल बने रहते हैं। तो ये चूंकि लोग गाफिल रहते हैं, जो रजब और रमजान के दरमियान वाला महीना शाबान है, तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस महीने में, चूंकि लोग अक्सर गफलत करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा रोजे रखता हूं। तो उलमा ने इससे हदीस से ये भी मसला अखज़ किया है कि जिस जगह पे लोग ज्यादा गाफिल हों वहां तो अल्लाह का जिक्र ज्यादा किया करो। मिसाल के तौर पे बंदा मस्जिद में आता है, यहाँ तो सारे जिक्र करने आते हैं। मस्जिद में आता है, यहाँ तो कुरान पाक की तिलावत होती है, नमाजें होती हैं, अल्लाह से माफिया मांगी जाती हैं। लेकिन जब बंदा बाहर बाजार में जाता है
वलिल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह को सारे शहरों में जो बेहतरीन जगह हैं वो मस्जिदें लगती हैं, और शहरों में सबसे अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा चीजें जगहें वो बाजार हैं, मार्केटें हैं। तो मार्केटों में चूंकि पैसे की दौड़ लगी हुई है, तो ऐसे में अपनी दुकान पे बैठे हुए सुभान अल्लाह की तस्बीह निकालते जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह निकालते जाएं, इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये तस्बीह निकालते जाएं, अल्लाह से माफिया मांगते जाएं। कोई बंदा किसी शादी के फंक्शन में गया है, तो शादी का फंक्शन एक ऐसा मकाम है जहां लोग अक्सर जिक्र से गाफिल रहते हैं, हत्ता कि नमाजों से भी गाफिल हो जाते हैं। तो अभी खाना नहीं खुला, आप वहां बैठे अल्लाह ताला का जिक्र ज़िक्र करते जाएं। बाहर आप वॉक पे जाते हैं तो वहां लोग पूरे दिन में जो कुछ भी हो गया, किन्नू किन्ने वोट पै गए, किन्नू किन्नियां सीटां मिल गई, सारी सियासत वहां पे होती है। आप कोशिश करें तो लोगों से अलग थलग बात करते हैं, तो जिक्र करते जाएं, तो जहां पर गफलत होती है उन मकामात पे तो हमें ज्यादा जिक्र करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस महीने में चूंकि लोग अक्सर गफलत में रह जाते हैं, इसलिए मैं इस महीने में ज्यादा रोजे रखता हूँ। वहुव शहरुन तुरफअ फीही अल-आमालु इला रब्बिल आलमीन, और ये वो महीना है जिसमें रब्बुल आलमीन के पास अमाल को उठाया जाता है। फअुहिब्बु अन युरफअ अमली व अना साइमुन, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमाल इस महीने में ऊपर जाएं तो मैं रोजे में हूँ। तो पता चला कि अगर बंदा उसकी वफात आती है तो अच्छे अमाल पे आनी चाहिए, अगर बंदा बुराइयां कर रहा है वहां फौत हो जाता है, उससे कितनी वो खुश नसीब मौत होगी जो दीनदारी पे आ जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं पसंद करता हूं कि मेरे अमाल अल्लाह के पास जाएं तो मैं रोजे से हूं। फरिश्ते फजर की नमाज पे भी आते हैं, असर तक रहते हैं, असर की नमाज से आते हैं और फिर अगली सुबह तक रहते हैं, और वो रिपोर्टें लेके जाते हैं। जब अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या देख के आए, वो कहते हैं कि या अल्लाह जब हम गए थे तब ये लोग नमाज पढ़ रहे थे, तब ये फजर की नमाज में थे, या अल्लाह जब आए हैं तो तब भी ये नमाज पढ़ रहे थे, असर की नमाज पढ़ रहे थे। असर वाले भी यही कहते हैं कि या अल्लाह जब आए थे तब भी ये नमाज पढ़ रहे थे, जब वहां से वापस आ रहे हैं ये फजर की नमाज पढ़ रहे थे। तो हज़रात कितने वो बदनसीब लोग होंगे जिनकी डेली रिपोर्ट ये जाती होगी कि सवेरे सुते पैसा असर ने दुकान पे बैठे सी ना, फजर की हाजिरी फरिश्तों ने जाके यस वाली दी, ना असर की हाजिरी फरिश्तों ने जाके इसके अच्छे कलिमात लिखे। तो ये जो बंदा गाफिल ही गाफिल रहता है, सोया रहता है, ना फजर की नमाज में, ना इशा की नमाज में, ना असर की नमाज में, तो ये तो मुनाफिकीन के बारे में आता है कि वला यअतून सलाता इल्ला वहुम कुसाला, मुनाफिकीन सुस्ती के साथ नमाज में आते हैं, और मुनाफिकीन के लिए फजर की नमाज और इशा की नमाज बड़ी भारी है। सही बुखारी की हदीस है, सुनन अबी दाऊद में एक रिवायत है, हदीस नंबर 2336, सही हदीस है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं अन्नहु लम यकुन यसूमु मिन सारति शहरन तामन इल्ला शाबाना यासिरुहु बि रमजान। नबी अलैहिस्सलाम पूरा महीना कोई रोजे नहीं रखते थे, रमजान के अलावा शाबान में पूरा महीना ही रखते थे। इससे पिछली रिवायत में आया है कि चंद एक रोजे छोड़ते थे, गोया के शाबान में नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा कसरत के साथ रोजे रखा करते थे। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2849, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाहि बअदल्लाहु वजहहु अनिन नारी 70 खरीफा, जो अल्लाह के लिए एक रोजा रखता है अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नम से 70 बरस की दूरी पे कर देते हैं। तो अगर बंदा एक रखता है 70 बरस दूरी होगी, 2 रख लिए, 10 रख लिए, तो कितने 70 बरस, ये अल्लाह ताला की कितनी अता है कि एक रोजा रखो जहन्नम से
तो जामे तिरमिज़ी की एक हदीस है, हदीस नंबर 2201 सही हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल इबादतु फिल हरज कल हिजरत इलैया। फितनों के ज़माने में जब कत्ल आम हो रहे हों, जब फितने आम हो रहे हों, ऐसे ज़मानों में इबादत करना ये ऐसी है कि जैसे बंदा हिजरत करके मेरी तरफ आ रहा है। नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ ले गए। जो पीछे मक्का को छोड़कर मदीना जा रहे हैं, उन महाजिरीन के बहुत ज्यादा फजाइल कुरान मजीद में है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा फितनों के जमाने में इबादत की तरफ आ जाता है, वो ऐसे है कि जैसे मेरी तरफ वो बंदा हिजरत करके आ रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ हिजरत करके आना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम का साथ इसी तरह मिलता है, वमन युतिइल्लाह व रसूल, जो अल्लाह की इताअत करता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, वो अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों में उनके साथ हो जाएगा, नबियों के साथ हो जाएगा, सिद्दीकीन के साथ हो जाएगा, शुहदा के साथ हो जाएगा, सालेहीन के साथ हो जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया वहसुना उलाइका रफीका, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा साथ है जिनको नबियों का साथ मिल जाए, जिनको सिद्दीकीन का साथ मिल जाए, जिन्हें शुहदा और सालेहीन का साथ मिल जाए, उनकी रिफाकत मिल जाए। इससे अच्छा साथ क्या हो सकता है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133 133 अल्लाह ताला ने फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। जन्नत जिसका अर्द, जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान जितनी है, वो लंबाई उसकी कितनी होगी। फरमाया कि जिसकी चौड़ाई वो आसमान और जमीन जैसी है, उस जन्नत की तरफ जल्दी जल्दी आ जाओ। उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। बाद बंदे सारा साल गफलत में गुजारते हैं, बस रमजान शरीफ आ जाए, बस उसके बाद हमने नमाजें शुरू कर लेनी है। ये अगर रमजान आने से 2 दिन पहले तो फौत हो गया, फिर तो गारंटी लिखवा के लाया है कि रमजान में तू दाखिल होगा, रमजान गुजारेगा, रमजान के बाद तक तू जिंदा रहेगा। किसने गारंटी लिखवाई है। इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब अल्लाह के फैसले आ गए, फिर एक लम्हा, एक घड़ी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसलिए जल्दी जल्दी नेकियों की तरफ आ जाना चाहिए। सुनन इब्न माजा की एक रिवायत है, हदीस नंबर 2883 हसन दर्जे की रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अराद अल हज फलयतअज्जल फइन्नहु कद यमरदुल मरीद व तज़िल्लु ज़ालतु व तअरिदुल हाजा। जो बंदा हज का इरादा रखता है, उसे चाहिए कि जल्दी जल्दी हज कर लिया करे। वह कि जिसको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, सेहत दी है, इस्तिताअत दी है, उसे चाहिए कि हज करने में देर ना करे। हो सकता है अब सेहत है, कल को बंदा मरीज हो जाए, हो सकता है कि इसकी कोई सवारी खत्म हो जाए, हो सकता है कि कोई ऐसा काम पड़ जाए जिसकी वजह से ये जा ही ना सके। तो नेकी के कामों में देर नहीं करनी चाहिए। हज की बात है तो उसमें भी नेकी ना करो। जो भी नेकी इसके सामने आती है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरतिन, खजूर का एक टुकड़ा अगर वो देकर वो जहन्नम की आग से बच सकते हो तो वो टुकड़ा दे दिया करो। अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया करो। अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करो, रोजे भी रखो, नमाजें भी पढ़ो, और जो जो नेक अमाल कर सकते हैं सारे के सारे नेक अमाल करते जाएं शौक के साथ, खुशी के साथ। तो फिर अल्लाह ताला की रहमतें आ जाती हैं। सुनन नसाई की हदीस है, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को सही कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ताबिउ बैन अल हज वल उम्रा, हज और उम्रा बार बार किया करो। इसलिए फइन्नहुमा यनफियान अल फक्र व ज़ुनूबा, इससे 2 चीजों का फायदा होता है। एक फायदा ये होता है हज उम्रा करने से गुनाह खत्म हो जाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि गुर्बत और फकीरी खत्म हो जाती है। तो बंदा ये ना समझे कि मेरा 10-15 लाख रुपया लग जाएगा तो पीछे से कारोबार कैसे चलेगा। अगर अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं कि तेरा कारोबार बेच के नहीं, मकान बेच के नहीं, बच्चों का राशन और बच्चों की जरूरियात खर्च के नहीं, अगर तेरे बच्चों की जरूरियात भी चल रही हैं, तेरा बिजनेस भी चल रहा है, तेरी बाकी जरूरियात जो वो चल रही हैं, जायद पैसे तेरे पास पड़े हुए हैं, तो अल्लाह के रास्ते के अंदर निकल
حج کو جلدی کر لے، استطاعت تو یہی ہے نا. تو فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فقر بھی ختم ہوتا ہے، گناہ بھی دھل جاتے ہیں، گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور صحیح الجامع کی ایک روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فآتاہم. حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وفد میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا میرے وفد میں آ جاؤ، وہ چلے گئے. پھر وہاں جا کر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اعلیٰ سطحی وفد جا رہا ہے، کوئی بہت اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن جا رہا ہے، یہ جی فلاں جگہ پہ مذاکرات کرے گا، یہ ہمارے ملک کی وہاں پہ نمائندگی کرے گا، تو جو حج پہ جاتا ہے وہ اللہ کے وفد میں شامل ہو گیا. جو عمرے میں جاتا ہے وہ اللہ کے وفد میں شامل ہو گیا، اور اللہ کے وفد سے بہترین کوئی وفد نہیں ہو سکتا. جو بندے اللہ کے وفد میں شامل ہو گئے، اللہ کی آواز میں لبیک کہہ دیا، فرمایا کہ وہاں جا کر سألوہ، پھر وفد جب وہاں پہنچتا ہے پھر اپنی حاجات سامنے رکھتا ہے، اللہ سے مانگتے یا اللہ ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. اللہ فرماتے چونکہ میرا وفد ہے تجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. اللہ فرماتے جاتے ہیں. تو حج بھی کرنا چاہیے، عمرے بھی کرنے چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی ایک حدیث نمبر 1014 نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے، بے شک جیسا بھی صدقہ ہے پاکیزہ مال سے ہے، بے شک تھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں اسے لے لیتا ہے. وَإِن كَانَتْ تَمْرَةٌ، اگر وہ کھجور ہے، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَانِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ. ایک کھجور اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی برکت دیتا ہے، کھجور کا صدقہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. ایک کھجور وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. اور اگر ایک بندہ 1 کلو کھجوریں صدقہ کر دیتا ہے تو کتنی زیادہ ہو جائے. اگر ایک بندہ کسی بندے کو، غریب لوگوں کو راشن توڑا دے دیتا ہے، کسی کو کچھ ضروریات ان کی دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑا پسند کرتا ہے. چھوٹی سی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پہاڑوں کی جیسا بنا دیتا ہے. اور فرمایا کہ کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ، جیسے چھوٹا بچہ گھوڑے کا ہوتا ہے اسے تم پال کے بڑا کر لیتے ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو، ایک کھجور کو اتنا نہیں رہنے دیتے. اللہ نے اس کو بڑا کے اتنا زیادہ کہ ایک کھجور وہ پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے. سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2528 حسن درجے کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کا درہم 100,000 درہم، ایک درہم 1,00,000 درہم کے اوپر سبقت لے گیا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیسے، ایک طرف 1,00,000 ہے، ایک طرف 1 درہم ہے، تو ایک درہم 1,00,000 درہم سے زیادہ وزنی کیسے ہو گیا، وہ اس سے سبقت کیسے لو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ، اس کے پاس 2 ہی درہم تھے، اس نے ایک اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، ایک اپنے پاس رکھ لیا. گویا کہ اس نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اور جس بندے نے 1,00,000 دیا ہے، اس کے لاکھوں کے ساتھ پورا اس کا گودام مثال کے طور پہ بڑا ہوا ہے، اس کا پورا بینک بڑا ہوا ہے. اس نے نبی علیہ السلام نے ایک کونے سے اس نے لاکھ اٹھایا، وہاں دے دیا، باقی تو سارے لاکھ اس کے پڑے ہوئے ہیں. اس کا تو اتنے لاکھوں میں سے اس کی شرح اور تناسب تھوڑی سی بنتی ہے. اس نے تو ہو سکتا ہے کہ اپنا جتنی اس کی جائیداد اس کا 1% بھی نہ دیا ہو، تو جس نے آدھی اپنی جائیداد دے دی، فرمایا کہ ایک درہم 1,00,000 درہم کے اوپر سبقت لے جاتا ہے. تو اس لیے جس بندے کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، جس کی تنخواہ تھوڑی ہے، جس کا گھر کا گزارا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے راستے میں 10 روپے ضرور دے دیا کرے. تھوڑا سا صدقہ وہ تو پھر بھی لے لینا چاہیے. اس لیے ایک بندہ 1,000 روپے دے کے جاتا ہے اور ایک بندہ 10 روپے دے کے جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ 1000 والے کے لاکھوں پیچھے پڑے ہوں اور یہ 10 والے کے بعد ہو سکتا ہے 100 روپیہ ہی ہوئے. اس میں سے اگر یہ 10 روپے خرچ کر دیتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہزاروں کے اوپر سبقت لے جائے. تو نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ
जाने की कमी चाहिए। अल्लाह ताला हमें आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही बुखारी के हदीस नंबर 1149। फजर की नमाज के करीब करके नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, बिलाल कौन सा इतना कोई अजीम काम करते हो कि मैं जन्नत में गया तो मैंने तेरे कदमों की आहट वहां पे भी सुन ली। तो कौन सा अमल करते हैं? वो कहते हैं मा अमिलतु अमलन अर्जा इंदी। हुजूर जो भी अल्लाह ताला तौफीक देता है उनमें से मुझे एक बात ये लगती है कि इन्नी लम अतताहा तहूरन फी साअति लैलिन और नहारिन, कि दिन के वक्त या रात के वक्त जब भी मैं वुजू करता हूँ तो मैं उसके बाद कोई ना कोई नमाज जरूर पढ़ लेता हूँ, मैं कोई ना कोई नफली नमाज जरूर पढ़ लेता हूँ। और मुस्नद अहमद के एक रिवायत है और जामे तिरमिज़ी की है, उसमें हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मा अहदसु इल्ला तवज़्ज़अतु। हुजूर जब भी बेवुजू होता हूँ तभी वुजू कर लेता हूँ। व सल्लैतु रकाअतैनी, और उसके बाद 2 रकअत में तहिय्यतुल वुजू पढ़ लेता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल यही बात है, ये वो 2 रकअतें हैं जिनकी वजह से जन्नत में तो मेरे आगे आगे चल रहे थे। तो हज़रात कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है कि कोशिश किया करें कि बावजूद रहा करें और उसके बाद जब अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए फर्ज भी पढ़े, सुन्नतें भी पढ़े, नफल नवाफिल भी पढ़ते रहें। जामे तिरमिज़ी की एक रिवायत है, हदीस नंबर 2527 हसन दर्जे की हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के अंदर कुछ बाला खाने कमरे ऐसे खूबसूरत बने हैं कि अंदर से देखेगा बाहर का मंजर नजर आएगा, बाहर से देखेगा अंदर का मंजर नजर आएगा। सहाबा ने अर्ज़ की कि हुजूर ये कमरे किनको मिलेंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लिमन अताबल कलाम, जो कलाम बड़ी अच्छी करे उसे मिल जाएंगे। वह अतअमत ताम, जो बंदा लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दे उसे मिल जाएगा। वह अदाम सियाम, जो कसरत के साथ दवाम के साथ रोजे रखता जाता है उसको मिल जाएंगे। वसल्ला बिल्लैली वन्नासु नियाम, जब रात को लोग सोए होते हैं ये उठ के तहज्जुद पढ़ेगा, ये इसको कमरे मिल जाएंगे। तो अमल तो छोटे छोटे लगते हैं लेकिन इनका दर्जा बहुत ज्यादा है। सही मुस्लिम के हदीस नंबर 489 हजरत रबिया इब्न कअब अल-अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करता था। रात को मैं नबी अलैहिस्सलाम को वुजू का पानी देता, को और जरूरत होती तो मैं खिदमत के लिए नबी अलैहिस्सलाम के पास हुआ करता था। तो एक बार नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे पूछा कि रबिया कोई चीज मांगनी है तो मांग ले। उन्होंने कहा कि हुजूर जन्नत में आपका साथ चाहिए, तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। जन्नत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का साथ उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके अलावा कुछ और? उसने कहा हुजूर और कुछ नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फअइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, तू सजदे बहुत ज्यादा किया कर, ये भी तुझे मिल जाएगा। तो पता ये चला कि हमें इस महीने में बहुत ज्यादा इबादत की तरफ अपने आप को रागिब करना चाहिए। इबादत में जो भी तुझे नजर आए, रोजे रखें, सदका खैरात करें, नमाजें पढ़ें, फर्जी पढ़ें, सुन्नतें पढ़ें, नफल पढ़ें, हज उम्रे पे जाएं, जो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाते हैं नेक अमाल करते जाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो चीज है वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, दौड़ लगानी है तो इस काम में लगाओ, दुनिया के पीछे दौड़ना लगाओ। अल्लाह ताला हमें अपनी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख्ज़ुल मन खज़ला दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम।
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل البدعة والمبتدعين اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.